چلیں انشاءاللہ یہ ویڈیو مطلب یوٹیوب پہ ڈالیں گے، لیکن یہ اب جو اس سے فائدہ اٹھا لے اپنی جگہ پر، یہ ایجوکیشن کی ویڈیو ہے۔ اور یہ ویڈیو ایک دوست ہے، اس کے گھر کے کچھ افراد یہ عربی سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی لینتھ زیادہ ہوگی تو یہ واٹس اپ کر نہیں پاؤں گا، تو یہ یوٹیوب پہ ڈالوں گا، ٹھیک ہے نا۔ چلیں، سنگل ورڈ کو کہتے ہیں مفرد، کیا کہتے ہیں؟ مفرد۔ جیسے خالد، خالد کو مفرد کہیں گے عربی کے اعتبار سے، لیکن خالد سے پہلے یا بعد کوئی ایک اور ورڈ آ گیا، اب یہ مفرد نہیں ہے، اب کیا ہے؟ یہ مرکب۔ کیا ہے؟ ایک سے زیادہ یعنی کم از کم 2 ورڈ ہوں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مرکب کہیں گے۔ اب مرکب کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، بہرحال جس قسم پہ ہم کام کر رہے ہیں اس کا نام ہے مرکب اضافی، مرکب اضافی، اور اس کا نام ایک اور نام ہے مضاف اور مضاف الیہ، ٹھیک ہے نا۔ مضاف پہلا جز جو ہوتا ہے وہ مضاف کہلاتا ہے، پہلا جز کیا کہلاتا ہے؟ مضاف کہلاتا ہے۔ اور مضاف عام طور پر نکرہ ہوتا ہے۔ مضاف کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے۔ نکرہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی چیز کا نام لیں تو کوئی خاص معین چیز آپ کے ذہن میں نہ آئے۔ جیسے یہ لکھا ہوا ہے قلم، اب میں آپ کو کہتا ہوں قلم، تو آپ کے ذہن میں کوئی خاص قلم، پتہ نہیں کون سے قلم کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں کہتا ہوں خالد کا قلم، تو جسٹ سپوز خالد آپ کا دوست ہے تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا ہاں یار خالد کے پاس ایسا قلم ہے۔ خالد کی وجہ سے تو خالد کیا ہے؟ معرفہ۔ خالد کیا ہے؟ اور مضاف اور مضاف الیہ میں عام طور پر بلکہ ہمیشہ یا اکثر کہہ لیں، پہلا جز جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، دوسرا جو ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے۔ جیسے خالد ایک نام ہے، یہ معرفہ ہے، جیسے ہی آپ خالد بولے گے کوئی نہ کوئی خالد جس کو آپ جانتے وہ ذہن میں آپ کے حاضر ہو جائے گا کہ یار خالد کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مضاف ہوتا ہے، پہلے جس کو کیا کہیں گے؟ مضاف۔ مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی، مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی، اور کیا تھا؟ نکرہ ہوگا، اور کیا ہوگا؟ اور کبھی بھی تنوین نہیں لے گا، اور ہمیشہ بہرحال چلیں یہ رہ جائے گا، تنوین نہیں اٹھائے گا۔ مضاف کی پہچان کیا ہے؟ وہ تنوین نہیں اٹھائے گا، اور مضاف ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، مضاف ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد والے جس کو کہتے ہیں مضاف الیہ، کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ، وہ ہمیشہ مضاف الیہ معرفہ ہوتا ہے، مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ جر لیتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ جر لیتا ہے۔ اب مضاف الیہ کو جر کون دیتا ہے؟ مضاف دیتا ہے۔ جر کہتے ہیں زیر کو، جر کس کو کہتے ہیں؟ زیر کو عربی میں جر کہتے ہیں، جر کہتے ہیں، کسرہ کہتے ہیں، جر کہتے ہیں اور کسرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خالد اس ٹائم کون سی حالت میں؟ حالت جری میں، حالت جری میں۔ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ خالد کے نیچے زیر آ رہا ہے، خالد کے نیچے زیر کو عربی میں جر کہتے ہیں، اور جس لفظ پر آ جائے اسے کہتے ہیں کہ مجرور ہے اور حالت جری میں، مجرور ہے اور حالت جری میں، ٹھیک ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، کتاب کے اندر ہی لکھی ہیں۔ ہم کتاب کا میں دکھا دوں اگر ہمارے ویور اگر دیکھیں اور پڑھنا چاہے، کتاب کا نام ہے تسہیل الانشاء جز اول، اس کا ہم سبق نمبر 3 پڑھ رہے ہیں، الدرس الثالث، تو اس کے اندر انہوں نے کچھ مثالیں دی، اسی مثال کو لے کر چلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرے نمبر پہ لکھا ہے مفتاح البابی، مفتاح دروازے کی چابی، دروازے کی۔ اچھا، جب بھی مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے تو پیچھے سے لیں گے، کہاں سے لیں گے؟ جیسے خالد کا قلم، خالد کا قلم، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بیچ میں کیا ڈالیں گے؟ کا کو کی، جو اس پہ سیٹ ہو رہا ہوگا، جو لفظ سیٹ ہو رہا ہوگا اس کو ڈالیں گے۔ خالد کا قلم، دروازے کی چابی، دروازے کی چابی، ٹھیک ہے نا۔ باب کہتے ہیں دروازے کو، مفتاح کہتے ہیں چابی کو۔ اب باب اس ٹائم کون سی حالت میں؟ معرفہ، اور کیا ہے؟ حالت جری میں، اور کون سی حالت میں؟ مفتاح البابی، مفتاح دروازے کی چابی، تو یہ کون سی حالت میں؟ حالت جری۔ تو مضاف الیہ ہمیشہ جر لے گا، ہمیشہ جر لے گا، اور مضاف پہ کبھی بھی تنوین، مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی، اور وہ نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا معنی بنے گا دروازے کی چابی۔ پھر ہے غصن الشجارتی، غصن الشجارتی تھوڑا مشکل ہے پڑھنے میں،
गुस्नुस शजरती दरक की टहनी, दरक की टहनी टहनी। अब इसमें शजारा क्या है? मारफा है। मैंने क्या कहा था? मुदाफुन इले हमेशा मारफा मारफा होता है। तो शजर को यहाँ पर मारफा कैसे बनाएंगे? अलिफ लाम दाखिल करके। जो चीज़ नकरा होगी उसको मारफा बनाने के कुछ फार्मूले होते हैं। जैसे बाज़ चीज़ें मारफा ही हैं, उसको आप मारफा बना ही नहीं सकते। जैसे अल्लाह, अल्लाह का नाम मारफा है, सोचना नहीं पड़ता है क्या बात हो रही है। इसी तरह अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु, नाम है मोहम्मद, प्रॉपर नाम है, मारफा है, सोचना नहीं पड़ता किसकी बात हो रही। इसी तरह उमर, अली, उस्मान, ये सारे प्रॉपर नाम हैं। लेकिन जो प्रॉपर नाम नहीं होगा, अब उसको प्रॉपर कैसे बनाएंगे? जैसे कलम, कलम क्या है? नकरा नकरा है। अगर इसको मारफा बनाना होगा तो शुरू में अलकलम अलिफ लाम दाखिल करेंगे, अलिफ लाम दाखिल करेंगे। दरवाज़ा क्या है? बाब, नकरा, इसको मारफा कैसे बनाएंगे? अलबा अलिफ 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 लाम दाखिल करेंगे। किताब क्या है? नकरा नकरा, इसको मारफा कैसे बनाएंगे? इस्लाम दाखिल अलिफ लाम दाखिल करेंगे। जो मारफा है वो तो मारफा है, लेकिन जो मारफा नहीं है उसको मारफा बनाने के लिए कोई लॉजिक लगाना पड़ती है, ठीक है ना। अब जैसे आदमी, रजुलुन, रजुलुन आदमी, ठीक है ना, नकरा है मारफा है? नकरा है। नकरा पता नहीं किस आदमी की बात हो रही है, लेकिन अल लगाएंगे तो ये मारफा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अल लगाने के बाद भी जैसे मुदाफ तनवीन नहीं उठाता, इसी तरह अलिफ लाम लगने के बाद भी वो लफ्ज़ तनवीन, नहीं उठाया जैसे अल किताबुन नहीं होगा, अल किताबुन नहीं होगा, नहीं, अल किताबु होगा या बा होगा या बी होगा। यानी तनवीन अलिफ लाम जिस लफ्ज़ पर दाखिल हो जाएगा वो भी तनवीन नहीं उठाया नहीं उठाएगा। गुस्नु शजारती, दरक की टहनी टहनी। इसके बाद उन्होंने कहा लिसानुर, लिसानुर रुजुली आदमी की जबान, आदमी की। ज़बान अब देखें लिसान क्या है? ज़बान। कौन सी हालत में? नकरा में। और रुजुल मुदाफ बन रहा है। और रुजुल आदमी एक और भी था यार, साजिद भूल रहे हैं, 3 बातें बताई थी। कर तनवीन नहीं उठाएगा, लेकिन रजुल कौन सी हालत में? मारफा। और क्या है? मुदाफुन इले बन रहा है। और क्या है? जर लेगा। मुदाफुन इले हमेशा जल लेगा जर लेगा, इस पे हमेशा जर आएगा। अब ये क्या है? आदमी की ज़बान, आदमी की ज़बान इसको बनाने का यही फार्मूला होता है। देखें आगे भी इन्होंने लिखा हलीबुल बकारती, हलीबुल बकरा बकारती मतलब गाय का दूध, गाय का दूध गाय का दूध। अब गाय है तो मार्फ नकरा, अब इन्होंने इसको क्या किया है? मारफा बना दिया कि अल लगाकर। हलीब कहते हैं दूध को, हलीब कहते हैं दूध को हलीब। जब आप इसको हलीब पढ़ोगे तो ये नकरा ही है ना, दूध की बात हो रही है। सही है अब किसका दूध? जब किसी चीज़ का आपने नाम डाल दिया तो अब आप उस चीज़, जैसे गाय का दूध, बकरी का दूध, ऊँटनी का दूध, दूध की बहुत सारी किस्में, हराम जानवरों का भी दूध होता है, ठीक है ना। तो अब ये कह रहे हैं आप इसको पढ़ें हलीबुल बका बकरती रती। देखें बका रती में बकरा यानी गाय, गाय कौन सी हालत में? हालत जर्री में। और क्या है? मारफा है, ठीक है। इसी तरह तनवीन भी नहीं लेगा, अलिफ लाम दाखिल होने की वजह से तनवीन भी नहीं उठाएगा, ठीक है ना। हलीब क्या है? मुदाफ है और नकरा है और तनवीन नहीं उठाएगा। तीसरी बात जो हम भूल रहे थे यही थी, तनवीन, तनवीन नहीं उठाएगा, तनवीन। अब ये कह रहे हैं गाय का दूध, तो हलीब कौन सी हालत में? मुदाफ है, नकरा है और तनवीन नहीं उठाएगा। और मुदाफुन इले कौन सी हालत में? मारफा है, तनवीन नहीं उठाएगा। हालत जर्री में होगा हालत हमेशा मुदाफुन इले हमेशा हालत जर्री में रहेगा। अब ये कह रहे हैं गाय का दूध। अब इसकी तरतीब कहाँ से लेंगे? पीछे से लेंगे, बकारा से लेंगे, गाय का दूध। अब ये का कू की उसके लफ्ज़ में जो सेट हो रहा होगा, गाय के दूध नहीं, गाय का दूध, तो इसको इसके हिसाब से हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। चौथे नंबर पे कह रहे हैं आयत, चले सूरतुल, एक छोड़ दिया मैंने, ये समझाना पड़ेगा, आयतुल कुरान, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सूरतुल तालिबी हदीक़तुल नासिरिन,
हदीकातु, हदीका कहते हैं बाग को। नासिर का बाग, शाबाश, बोला नहीं है छुट्टियों के बाद भी। हाँ, हदीकातु नासिरिन, नासिर का बाग, बाग। अब इसके अंदर क्या, हदीकातु नासिरिन, हदीका मुदाफ है, मदीका क्या है, पहले जिसको क्या कहेंगे, मुदाफ। मुदाफ क्या करेगा, तनवीन नहीं उठाएगा और नकरा होगा। दूसरा जुस मुदाफुन इले, ठीक है ना, और मारफा होगा मारफा होगा, और तनवीन नहीं तनवीन उठाएगा, अलिफ लाम तनवीन नहीं उठाएगा। अलिफ लाम तनवीन हालत जर्री में होगा, हालत जल्दी में होगा। जैसे जब भी आएगा, जैसे रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, तो जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो जर उठाएगा। इसी तरह किताबुल्लाही, किताब। अल्लाह की किताब, अब इसमें प्रोनाउंस का जो है तलफ़ुज़ का भी ख्याल रखेंगे, बा लाम पेश बुल, जो साउंड है वही अदा करेंगे, ठीक है, बुल्लाही। अब तर्जमा कहाँ से लेंगे, पीछे से, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, किताब। किताब क्या है, नकरा, अल्लाह क्या है, मारफा। तो किताब क्या बना, मुदाफ, मुदाफ, और नकरा, अल्लाह क्या बना, मारिफा, और है क्या, मारफा ही है, और मुदाफुन इले, और मुदाफुन इले हमेशा हालत जरी मजरूर होता है। क्या होता है, मजरूर होता है। मजरूर होता है, ठीक है ना। इसके बाद ये कह रहे हैं शजरतुत तुफ़ाही, सेब का दरख्त, ठीक है ना। अब किसी भी चीज़ को आपने लिखना है, बनाना है, खुद से भी अगर आपको वर्डिंग बनानी है तो एक को नकरा दूसरे को मारफा बनाएंगे, एक को नकरा दूसरे को मारफा, मारफा बनाएंगे। इसको कहते हैं नकरा प्लस मारफा। क्या कहते हैं, नकरा प्लस नकरा प्लस, मारफा, दो वर्ड आ गए, दो मुफरद, दो मुफरद आ गए। तो अब ये मुफरद नहीं रहा, जैसे कलम क्या था, मुफरद है, मुफरद है, अब इसके साथ एक और मुफरद आ गया, हालिफ, अब तो अब ये मुफरद नहीं रहा, क्या बन गया, मुरक्कब, मुरक्कब। मुरक्कब है इजाफी, इजाफी। मुरक्कब के लिए कम से कम दो वर्ड चाहिए, जैसे कलामु खालिदिन और मदीने का नूर, मदीने का नूर, नूरुल मदीना थी, नूरुल मदीना, नूरुल। अब देखें नूर आया, नूरुल मदीना, मदीना ती, मदीने का नूर। अब यहाँ समझाने के लिए बड़ा लंबी डिबेट हो जाएगी कि मदीना तो मारफा है, लेकिन असल में मदीना अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना शहर है। अब इसको नूर हटा दें, नबी लगा दें, पहले ऐसा भी कहा गया है, मदीनातुल नबी, सॉरी मदीनातुल नबी का शहर, ये उल्टा हो गया, गलत हो गया, सॉरी, माफ़ी चाहते हैं, वीडियो बन रही है, थोड़ा एहतियात करना पड़ेगा इसमें। मदीनातुल नबी, नबी का शहर, क्या बनेगा, नबी का शहर, नबी का शहर, ठीक है। नबी तो बहुत सारे हैं, अब किस नबी की बात हो रही है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो इसी तरह कोई भी सेंटेंस है, अब दायरा ये वीडियो बना रहा हूँ, डर भी लग रहा है क्योंकि लेंथ भी काफ़ी हो गई है। तो यासिन भाई, ये अभी इसको मैं यहीं रोकता हूँ, इसको आप तजर्बा करना अगर आपको ये वीडियो, क्योंकि ये मजबूरी ये है कि व्हाट्सअप से डायरेक्ट नहीं जा सकेगी, अब इसको यूट्यूब पे डालूँगा। अब यूट्यूब के जो मेरे यूज़र हैं वो शॉर्ट वीडियो देखते हैं, मैं इतनी लंबी बनाता नहीं हूँ, तो उनको ये बता दूँ, मैं अरबी ग्रामर किसी को बच्चे को पढ़ाने के लिए वीडियो बनाई है। अब मैं कोशिश करता हूँ डायरेक्ट चले जाए, वरना मुझे यूट्यूब में लोड करना पड़ेगी। तो यासिन भाई आप गौर करके बताइएगा मैं समझा पाया या नहीं, और जो भी अरबी ग्रामर के स्टूडेंट है वो भी देखें और मुझे मशवरा दें, कमेंट्स करें कि भाई पढ़ाने में कोई गलती हुई या समझाने में कोई गलती हुई, वीडियो की तरह ये समझा सकता है कि नहीं, ठीक है ना। तमाम दोस्तों से दुआओं की दरख्वास्त है।